S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Do you know which particular 5-year plan has a target to enroll most of the 18 to 23 years old to educational sector, to higher education? So it was 12th 5-year plan itself, right? So we are going to talk about the 10th, 11th and 12th 5-year plan in this video. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chan Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. Welcome to S. Chan Academy. My name is Saurabh Gupta. Let's go ahead with the 10th 5-year plan. Now, goal was clear. Double per capita income in 10 years, improving the equality of life of people. So it is a 5-year plan although, but they wanted to continue this particular objective to the next plan also, right? So herein, first of all, understand this thing. Their target was to achieve this particular rate, 8.1%. And they could not achieve the 8% mark also. So they got around 7.2% mark of growth rate, right? So this was achieved, 7.2%. Here the main focus was to eradicate poverty also. So they wanted to reduce poverty by at least 5% rate of poverty growth, right? So they wanted to reduce it by 5%. So herein, when we talk about double per capita income, it means that we want to grow at double pace, which is not possible if the things are not aligned properly, if the resources are not aligned properly, if the capital resources are not aligned properly, and the human resources are not aligned properly, and they are not skilled enough to achieve such goals, right? Now, they wanted to improve the quality of life of people. Now, quality of life can be improvised only when people have a thought process of living a life rather than sustaining a life. Right, herein, before this plan, people were thinking of sustaining their life. People were thinking of just having the basic necessities. Now, they wanted to improvise the quality of life of people, which is not yet achieved. We can say that yes, we are now living in a better situation, most of our population, right? But cannot say completely that we have achieved a better quality of life for our people. Right. So they wanted to set monitorable targets and emphasize governance as a factor of development. अब चाहते थे ये कंट्रोल कि भाई हम जो गोल या जो ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज करते हैं वो किस लेवल तक अचीव होते हैं, वो गोल अकम्प्लिश किस लेवल तक होते हैं, और अगर नहीं हो पाते तो वो कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि वो गोल्स अचीव क्यों नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम आया, एंड उन प्रॉब्लम्स को हम इम्प्रोवाइज कर सकें इन फ्यूचर, सो दैट हम उन गोल्स को अचीव कर सकें. एम्फसाइज्ड गवर्नेंस, यानी कि अब अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही ज्यादा होगी, राइट? सो इन दिस प्लान दे थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इन मोर फोकस टू गवर्नेंस, द बेटर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस. नाउ, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड. सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, आप यही टाइम पीरियड है जब आप बात कर रहे थे 2002 से लेके 2007 तक की, जहां पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे. लोग आईटी सेक्टर की तरफ ज्यादा डेवलप कर रहे थे, आईटी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ज्यादा हो रहा था, लोग एमबीएस कर रहे थे, एक प्रोफेशनल डिग्रीज कर रहे थे लोग. आपने वो एरिया, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी देखा होगा या सुना होगा जब लोग एमबीए के करने के लिए बहुत ज्यादा खुश होते थे कि एमबीए करने जा रहे हैं हम, या एमबीए करना चाहिए हमें, राइट? वो थॉट प्रोसेस था. जैसे कि किसी टाइम पे बीटेक के लिए, एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक डिग्री हुआ करता था, तो लोग अपने बच्चों को बीटेक के लिए प्रिपेयर कराते थे. उसी तरह से एमबीए का भी एक ट्रेंड आया, फिर ऐसे ही फोकस चेंज होता जाता है. लोग
डिग्री वाइज और कोर्सेज वाइज शिफ्ट कर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स वाज सीन, नॉट ओनली इन एजुकेशन सेक्टर। यू वुड सी कि हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से एक तो सर्विस सेक्टर की तरफ आ चुके थे, पूरी तरह ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो ही चुका था, और वो सर्विस सेक्टर में भी स्पेसिफिक सेगमेंट में कि आईटी इंडस्ट्री डेवलप कर रही थी बहुत ज्यादा अचानक से, राइट। तो आईटी इंडस्ट्री में बूम आ गया था अचानक से, जॉब्स का, एम्प्लॉयमेंट का, एंड जो प्रोफेशनल्स होते थे आईटी प्रोफेशनल्स, तो डेफिनेटली जॉब मिल रही थी उनको, बट देन देयर वर प्रोफेशनल्स लाइक मैनेजर्स, देयर वर प्रोफेशनल्स जो ग्रेजुएट होते थे सिर्फ, और वो उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था, सो आउटसोर्स्ड काम करने के लिए आईटी सेक्टर्स में जाके अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करने के साथ साथ वो काम कर रहे थे, राइट। सो पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। देन गवर्नमेंट ने इसी टाइम पे ही कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी लाए थे जहां पे कंपनीज को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेबर लॉज वगैरह फॉलो करने पड़ रहे थे, राइट। नाउ डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर एज द प्राइमरी मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ इस टाइम पीरियड में 10th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट इशू कर दिया था कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये प्राइमरी मूविंग फोर्स है, हमें यहाँ तक लाने के लिए अगर कोई चीज, हमें कोई फैक्टर अगर था तो वो था हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो हमें यहाँ तक इस ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम तक लेके आया है, राइट। एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। अब अभी भी हम जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू थिंक अपॉन दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी इम्प्रोवाइज्ड बाय 2 मेन फैक्टर्स। अगर आपके पास हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है तो हम हाइजीन और हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे, और अगर आपके पास एजुकेशन अच्छा है तो आप हाइजीन में रहना सीख जाते हैं, और आप एजुकेशन के साथ साथ बेटर वे ऑफ लिविंग समझ पाते हैं। आईटी सेक्टर के आने के बाद वी वर इन अ ट्रांसफॉर्मेशन एज। हम इस ड्यूरेशन के लोगों को मिलेनियर्स बोलते थे, क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटर्स देख रहे थे, हम टेलीफोन्स देख रहे थे, हम चीजें देख रहे थे, राइट। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एकदम से आईटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो इस दौरान ये मेन फोकस हमारा था एजुकेशन एंड हेल्थ एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड आईटी, राइट। Focus on inclusive growth and sustainable development. This was one of the main focus. So जिस्ट अगर बोले तो हमें सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ साथ अभी यहाँ पे इसी दौरान आप लोग क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करने लग गए थे। लोगों को लगने लग गया था कि हम एनवायरनमेंट को बहुत डिग्रेड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो हजार्डस कैलामिटीज हो रही हैं नेचर के थ्रू, वो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम क्योंकि ख्याल नहीं रख रहे हैं नेचर का। तो यहाँ पे अब बात होने लग गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यहाँ पे बात होने लग गई थी इन्वायरमेंटल केयर टेकिंग की, राइट। देन रीप्लांटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बातें होने लग गई थी। सो फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट with the thought process of keeping the resources for our future generations as well, right? That was one sort of development which was thought of. So 11th 5 year plan में जो हमने देखा वो ये देखा कि पहली बात तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह, राइट। आप सब जानते हो, उन्होंने एलपीजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, मतलब उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था, राइट। इस दौरान जेंडर इक्वालिटी बहुत फोकस में था, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात हो रही थी, जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रही थी, राइट। तो ये सारे चीजें यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि अब जेंडर इक्वालिटी, जो पे है वुमेन का और मेन का, उसके पे में जो डिस्पैरिटी है उसको रिड्यूस करना बाई 50%, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। तो यहाँ पे फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द एम, एंड दिस वाज द 11th 5 year plan. And if you see the targeted high growth rate of around 9%. So 9% जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे सर्विसेज को लेके बोल रहे हैं, सर्विसेज, राइट। 9% जो ग्रोथ रेट था, हम चाहते थे सर्विसेज सेक्टर में 9% का ग्रोथ रेट आए, 4% का एग्रीकल्चर में, राइट, 4% का एग्रीकल्चर में, और अराउंड 7% हमारा इंडस्ट्रियल
ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रोथ जो परसेंटेज है और पर कैपिटा जीडीपी जो ग्रोथ रेट आएगा वो 7.5%। तो हमने 9% के अराउंड टारगेट किया था, राइट। हाई ग्रोथ रेट था ये, उस टाइम के हिसाब से एक हाई ग्रोथ रेट माना जाएगा, राइट। वी टारगेटेड अराउंड 9% फॉर इन द सर्विसेज सेक्टर, ये डेवलपमेंट होगा, 4% फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड 7% फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड देन 7.5% towards the per capita GDP growth, right? It aims to reduce poverty, increase employment opportunities and improve the quality of life. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो तब आएंगी जब एजुकेशन अच्छा होगा, राइट। एंड इस जगह पे गवर्नमेंट चाहती थी कि 18 से 23 साल के बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन करें, राइट। हायर एजुकेशन करेंगे तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट। एंड दैट एम्प्लॉयबिलिटी हैज टू बी इंक्रीज थ्रू एजुकेशन. Now focus on providing essential services in health and education to the poor. वो बात हो ही रही है हमेशा, हर 5 ईयर प्लान में इस बारे में बात हो रही है कि हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलप करना था, राइट। सो 4% या 7% इंडस्ट्रियल ग्रोथ या 9% सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ, ये हमारा टारगेट इसलिए बन गया था क्योंकि लोग एजुकेटेड थे, हमारे सामने थे और हमें और लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना था, राइट। जिस वजह से 9% का टारगेट, हाई टारगेट हमने लेके चले, राइट। नाउ एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सो हमारा फोकस था कि हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, राइट। आप फॉर इंस्टेंस यहाँ पे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो आईटी हो, नॉन आईटी हो, फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, गुरुकुल्स हो, हमने सबको एक लिबरलाइज वे में ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। हमने बोला कि ठीक है हम ग्रो करेंगे इनको, इनसे ग्रोथ होगी हमारे बच्चों की, हमारे बच्चे जब ग्रो करेंगे, पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे या एजुकेटेड होंगे तो हमारे लिए वो एम्प्लॉयबल होंगे, और एम्प्लॉयबल होंगे तो कंट्री के जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। और वो कमाएंगे तो ऑब्वियसली खर्च भी करेंगे, तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, राइट। यूटिलाइज्ड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम टू एक्सटेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जो एक तो हो गई स्किल्ड लेबर की बात, अब जो अनस्किल्ड लेबर है उसके साथ क्या करना है। अनस्किल्ड लेबर को हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने थे, क्योंकि अब वो जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी में थे, अब एग्रीकल्चर से हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया खुद को एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में। अब हमें उन लोगों को अनएम्प्लॉयड देख के अच्छा थोड़ी लगेगा, हमें क्या करना चाहिए फिर उस केस में, हमें उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट देना था। तो आपने सुना भी होगा कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड, and this was also called NREGA, in the form of NREGA it came in, right? So National Rural Employment Guarantee Program, यानी कि लोगों को उनके गांव में, उनके नियर बाय विलेजेस में जो भी सरकारी काम होते थे, कैंपेन्स होते थे, उनमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना, राइट। एम्फसाइज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली है बात कि जेंडर इक्वालिटी वाज वन ऑफ द मेन फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान, यानी कि लड़की और लड़का दोनों बराबर, और उनके पे में जो डिस्पैरिटी थी, लड़की और लड़के के पे जो उनके सैलरीज थे उनमें जो डिफरेंसेस था उसको भी रिड्यूस करना बाय 50% इन दिस प्लान वाज द मेन फोकस, राइट। एंड स्ट्राइव टू इंप्रूव ओवरऑल गवर्नेंस। सो हमेशा गवर्नेंस इंप्रोवाइज करते रहना चाहिए, आपको कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्रोवाइज करते रहना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर दी मेन फीचर्स ऑफ 11th 5-year plan. So here I will take a short break and we will continue after the break. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the new education policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Welcome back to S. Chand Academy. Before the break, we have gone through the 10th 5-year plan and 11th 5-year plan and their major focuses, major objectives. So, we will look into the 12th and the last 5-year plan of the Planning Commission of India, because Planning Commission of India was shut off in November 2014,
almost. And from 1st January 2015, Niti Aayog was introduced, right? And it replaced the Planning Commission of India. So, talking about the 12th five-year plan, that is 2012 to 2017. So, it was introduced in 2012 and it ran through 2017, but Planning Commission of India was vanished. It was replaced by Niti Aayog, right? So, basically, यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ जो बोल रहे हैं 6.57% का जो ग्रोथ था, एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, एक्चुअली इट वाज more than 8%. So it was a high growth rate expectancy of 8% around, right? And objective here was that at least, or it is written here, they wanted to achieve 9% GDP growth, focus on 4% agricultural growth. So they wanted to have a higher expectancy of 9% GDP growth, right? Under this particular plan. Now, इसमें मेन फीचर्स ये थे कि भाई अगेन जेंडर इक्वालिटी चाहिए था, जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे जो पेमेंट्स होते थे सैलरीज के वो भी बेटर होने चाहिए, इम्प्रोवाइज होने चाहिए, राइट? आपका जो इन्वायरमेंटल इश्यूज थे उससे रेलेवेंट कुछ मिलियन हेक्टेयर लैंड्स का ग्रीन कवर बनाना एवरी ईयर, दैट वाज वन ऑफ द मेन फोकस, राइट, अंडर द 12th five-year plan. Then employment generation, so let's say 5 million job increment in the industrial or say service sector was to be developed, right, and was to be brought in. So 5 million job creation was to be done around, right, and develop a holistic water management policy and propose new land acquisition legislation. Now, if anyone wanted to acquire land, they had to follow this particular legislation. So they brought in new land acquisition legislation, and they also brought in water management policy, which will provide in equitable manner the water to every individual, right? जो भी उस कैटेगरी में उस स्कीम में फॉल करते हैं, right? Okay, continued focus on health, education and skill development, क्योंकि देखो ये ऐसे मुद्दे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है. ऑल्दो एजुकेशन सेक्टर में हम मिड डे मील लेके आ गए, बट मिड डे मील का इम्पैक्ट दिखा कि हमें नेगेटिव जा रहा है, इंटरप्रिटेशन नेगेटिव जा रहा है, लोग उसको बिजनेस बना के बैठ गए. अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये था गवर्नमेंट को लाने का मिड डे मील का कि बच्चे नरिश होंगे और बच्चे खाएंगे, अच्छे से रहेंगे और फिर पढ़ेंगे आके, और उसके भरोसे पढ़ेंगे आके शायद. बट यहाँ क्या हुआ कि अब सिर्फ खाना ही बनाया जा रहा है और वो भी पूरी तरह से नहीं, एट पार नहीं जो बताया जाता है. सो हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाया. अभी हमने कोविड के डेज में भी देखा रिसेंटली. जब हम 2012 से 17 की बात कर रहे हैं, सोचो कोविड के टाइम पे जो हमने फेस किया है कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, हमारे पास बेड्स नहीं थे हॉस्पिटल्स में. सो इमेजिन द सिचुएशन जहां पे कोई पेंडेमिक आती है, जब तब हमारा रियलिटी चेक होता है कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज थे क्या उतने, या हमारे हेल्थ फैसिलिटीज उतने थे क्या, नहीं थे. सो यहाँ पे इम्प्रोवाइज करने वाली सिचुएशन अगेन थी उस टाइम पे. ऑब्वियसली जब आज ये हाल था तो कई सालों पहले तो ये हाल होना था कि हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव नहीं हुई थी, राइट. उसको इम्प्रोवाइज करना वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव. एजुकेशन सेक्टर में अगेन हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट, अगेन फोकस उस पर था. आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर के साथ साथ सी दिस वाज द एज व्हेन मेजरली इंटरनेट वाज ब्रॉट इन, राइट. 2012, 13, 14, 15, 16. Internet was almost in every hand now, right? So education through internet or learning through internet, skill enhancement through internet और internet connectivity, communication increment, ये सब इसमें आ चुका था. एंड हमारा कंट्री ट्रांसफॉर्म हो रहा था पूरी तरह से. कंट्री हमारा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा था एक डिजिटल एरा में, डिजिटल एज में, राइट. So continued focus on health, education and skill development, significant investments in infrastructure development. Now, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था जैसे कि रोड और ये सब, मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का इनिशिएटिव था. उन्होंने इस प्लान के अंदर वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, गांव से शहर को जोड़ना, ये सब उसी के अंदर आता है. केवल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता वहां पे. उसके साथ साथ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्कूलिंग, जो फॉर्मल नॉन फॉर्मल स्कूलिंग हो रही है, एजुकेशन हो रहा है,
वो किस इन्वायरमेंट में हो रहा है, या फिर जो कॉलेजेस, अब बहुत सारे कॉलेजेस को यूजीसी के थ्रू ग्रांट मिलना, यूजीसी के थ्रू हेल्प मिलना, एड मिलना उनको, राइट, दैट वाज ऑल द प्रैक्टिस ऑफ 12th 5-year plan, right? Then emphasize physical corrections and efficient resource utilization. Now there were certain things which were to be corrected by the government, so वहां पे focus develop करना, and efficient resource utilization of efficient resource utilization means the resources should be utilized in a proper manner so that it doesn't lead to a wastage of resources, right? So these were some of the features of 12th 5-year plan, which was one of the last plan also. अच्छा, 5-year plan के, so these were some of the 5-year plans. So almost last one we have covered. Now हमें 5-year plans की जरूरत क्या थी, 5-year plans ने किस तरह से हेल्प करी, what are the benefits of 5-year plans? See, हमारे कंट्री का जो सिचुएशन था आफ्टर द इंडिपेंडेंस was not that good, right? हम सेल्फ सस्टेनिंग छोड़ो, हम माल नरिश्ड कंट्री थे. हमें डेवलप करना था इन सेवरल एस्पेक्ट्स एज एन, हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा फोकस जो था होना चाहिए था एग्रीकल्चर पे, वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गया सर्विस सेक्टर की तरफ थ्रू द जर्नी ऑफ 5-year प्लान्स. सर्विस सेक्टर से हम इंडस्ट्रियल सेटअप में आ गए. इंडस्ट्रियल सेटअप के भी अपने अपने ग्रोथ रेट्स होने लग गए, और उन ग्रोथ रेट्स को हमें पाने के लिए बार बार प्लानिंग करनी पड़ रही थी. और उस प्लानिंग को करने के लिए वी नीडेड सम सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट. नाउ 5-year प्लान्स ने हमें दिया क्या? 5-year प्लान्स ने हमें बेनिफिट किस वे में किया? हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो हम एक्सपेक्ट करते थे 2-3% 1950s में, आज हम फोकस करते हैं अराउंड 9, 10, 11, 12% तक. हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 12% तक हमें आराम से ग्रोथ रेट मिलेगा, राइट? एक तो जीडीपी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. क्योंकि अगर हम बात नहीं करते एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट शायद फ्यूचर में बढ़ता कि नहीं बढ़ता पता नहीं, राइट? हमने 5-year प्लान्स में उसकी बार बार बात करी, हर 5-year प्लान में उसकी बात करी, जिसकी वजह से हमने कई सारे स्किल्ड एम्प्लॉयज पाए, राइट? टॉकिंग अबाउट द जेंडर इक्वालिटी एंड द पेमेंट to all the genders and the same pay to both the genders. Now, एक टाइम था आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वुमेन वर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ देयर होम, बट आज की डेट में अगर आप कंपेयर करोगे कि वुमेन आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मेन, right? And so are the salaries also. Sometimes women's salaries are more than the men's salary. What is the reason? Reason is the continuous growth or continuous discussions over women empowerment, right? So these 5-year plans or any sort of committee development has led to such situation. It has given us this benefit, right? Then talking about the better standard of living. Now, if you compare your standard of living from now to 50 years back to your father's age, they all lived in villages. I am assuring you, they all lived in villages. Now is the situation when you are visiting to cities, you are visiting to cities for education purposes, for employment purposes, you're getting jobs there, right? You're living a quality of life, right? So there is a difference with the 5-year plans, right? Now, if you focus on several other aspects, education sector has improvised privatization की वजह से या globalization की वजह से. There are international schooling done in India now. There is international colleges collaborated with Indian colleges, which has led to international education, international exposure of students, right? Health facility may, if you talk about, because of globalization, we have integrated with the world economy as well in the terms of health facilities. Now, recently in COVID, we have exported several vaccinations to other nations, even included USA or UK. We have given them the vaccination. Think of the improvisation we have done in the health sector, right? So if you talk about road infrastructure, all the villages are connected to cities nowadays because of the planning commission, because of the planning, 5-year planning which we have done, right? So such exponential growth is not a matter of one day or 1 year or say 10 years. It is a matter of, it is a matter of almost 50 to 60 years. We have continuously strived for betterment of our life, betterment of our economy, betterment of our
own personal growth, right? So in this particular video, we have gone through 10th, 11th and 12th 5-year plans, and we have discussed several topics relevant to those plans and their features, right? See you in some other video. Stay connected. Thank you. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.